Hello everyone. Today's lecture is based upon chapter 4 Animal Kingdom for class 11th. Animal Kingdom का जो classification हुआ था, there were 4 criteria जिनके basis पे classify किया गया था further animals को. Cell का arrangement, body symmetry, nature of coelom and the pattern of digestive, circulatory and reproductive system inside the body. Now level of organization if we talk about, then cellular level of organization है, tissue level of organization होता है, and organ level of organization, organ system level of organization. Cellular level means जब body में जो cells होते हैं they are arranged as loose cell aggregates. Loose cell aggregates means they are not present, they are not tightly bound to each other. वो loose cell aggregates के form में present होते हैं. So that means that animal is having cellular level of organization. Porifera phylum में cellular level of organization होता है. इसका मतलब इनकी body में tissues organs नहीं होते, सिर्फ cells होते हैं. Then tissue level of organization, जब cells are arranged into tissues, when cells are grouped together they form tissues. तो इसका मतलब Coelenterata और Ctenophora की body में tissues present है. Specialized functions, the cells when they are grouped together to form as tissues they have a specific function. Then organ level of organization, जब टिश्यूज़ एक साथ ग्रुप होके दे फॉर्म एन ऑर्गन, दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा फाइलम में ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट थे. फर्स्ट टाइम ऑर्गन्स डेवलप्ड इन फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज. एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गन्स एक साथ ग्रुप होके दे फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स एंड दीज सिस्टम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर देयर फंक्शन. मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन, digestive system is specialized for its function, respiratory system is specialized for its function. So that is organ system level of organization. Phylum Aschelminthes से लेकर phylum Chordata तक they are having organ system level of organization. Now symmetry, let's talk about symmetry. Symmetry basically body shape and arrangement of internal organs in it, उसे हम symmetry बोलते हैं. There are 3 types of symmetry, body symmetry: asymmetrical, radial and bilateral. Asymmetrical, जब any plane passing from the central axis divides the organism into does not divide the organism into equal half, तो हम उसे asymmetrical बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमीबा कोई भी प्लेन अगर उसकी बॉडी से पास करेगा थ्रू सेंट्रल एक्सिस तो उसकी बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकता. सो इट इज़ हैविंग asymmetrical बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. पॉरीफेरा या स्पॉन्जेस की बॉडी में भी asymmetrical, दैट इज ऑल्सो asymmetrical. Then talking about radial symmetry. Radial symmetry का मतलब any plane passing through the central axis divides the organism into 2 equal half. कोई भी plane अगर central axis से pass हो रहा है तो वो उस organism को equal half में divide कर रहा है. And basically Coelenterata Ctenophora में you can observe radial symmetry like Hydra and all. Now talking about bilateral symmetry. Bilateral symmetry में only one plane passing through the central axis divides the organism into equal half. Like human beings, अगर horizontal axis के through pass हो रहा होगा तो बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होती है. इट्स थ्रू द वर्टिकल प्लेन, जब वो वर्टिकल प्लेन से डायसेक्ट होता है तब उनकी बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड होती है. तो सिर्फ एक ही प्लेन के थ्रू हो रहा है, सो दैट इज बायलेटरल सिमेट्री. नाउ सिमेट्री में देयर आर 2 एक्सेप्शंस. फाइलम मोलस्का बेसिकली बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं बट लेटर ऑन वो एसिमेट्रिकल हो जाते हैं टॉर्जन फिनोमेना की वजह से. एंड फाइलम इकाइनोडर्माटा भी बेसिकली बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. इनका लार्वा बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है बट लेटर ऑन अडल्ट फॉर्म जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल हो जाता है, रेडियली सिमेट्रिकल हो जाता है. देन टॉकिंग अबाउट डिप्लोब्लास्टिक एंड टिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में सेल्स 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में अरेंज है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. द आउटर लेयर इज एक्टोडर्म और जो इनर लेयर जिसमें सेल्स अरेंज होते हैं दैट इज एंडोडर्म. सो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज डिप्लोब्लास्टिक. पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा they are having diploblastic organization, whereas animals जिनमें developing embryo 3 germinal layers में cells arranged हैं जिसकी body में, that is triploblastic ऑर्गेनाइजेशन. वो एनिमल जिसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं और जो सेल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन दीज 3 जर्मिनल लेयर्स, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म और उनके बीच में स्पेशल लेयर दैट इज मीजोडर्म. सो पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक हैं एंड प्लैटीहेल्मिन्थीज से लेकर कॉरिटा तक सारे एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. नाउ ये जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं मीन्स पॉरीफेरा एंड सीलेंट्रेटा, इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है. So that undifferentiated layer present between ectoderm and endoderm that is known as mesohyle in porifera. Porifera में इस undifferentiated layer को
मीजोहाइल बोलते हैं, एंड सीलेंट्रेटा में इस अनडिफरेंशिएटेड लेयर को मीजोग्लिया बोलते हैं. सो ऑल्दो दे आर हैविंग टू जर्मिनल लेयर्स जिसमें सेल्स अरेंज है, लेकिन एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है उनके बीच में, एंड दैट इज हैविंग अ पर्टिकुलर नेम, मीजोहाइल इन पोरिफेरा एंड मीजोग्लिया इन सीलेंट्रेटा. So this is ट्रिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट जहाँ 3 जर्मिनल लेयर्स में सेल अरेंज है, एंड दिस इज जिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट जहाँ 2 जर्मिनल लेयर्स में सेल्स अरेंज है. नाउ टॉकिंग अबाउट सीलोम. सीलोम इज द बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल. बॉडी वॉल लाइंड होती है एक्टोडर्म से, और जो गट वॉल होती है दैट इज लाइंड बाय एंडोडर्म, एंड देन देयर इज अ कैविटी इन बिटवीन जो मीजोडर्म से लाइन होती है, दैट इज सीलोम. सीलोम अब्सॉर्ब्स शॉक, ये शॉक को अब्जॉर्ब करती है, एंड इट अलाउज मसल्स टू ग्रो इंडिपेंडेंटली, एंड इट ऑल्सो अलाउज ऑर्गन्स टू बी पैक्ड इन द बॉडी स्ट्रक्चर. नाउ एसीलोमेट कंडीशन वो होती है जहाँ पे बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है. फाइलम पोरिफेरा टू प्लैटीहेल्मिन्थीज बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, एसीलोमेट कंडीशन होती है. दिस वन इज एसीलोमेट कंडीशन जहाँ पे कहीं पे भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है. And then is the pseudocoelomate condition, animals in which the body cavity is not lined by mesoderm. Properly वो body cavity mesoderm से line नहीं होती है. Instead जो mesoderm है that is present in the form of scattered pouches. If it's clearly visible in the diagram कि जो mesoderm है वो proper lining नहीं कर रहा है cavity में, body cavity की, it is present in scattered pouches, and that is known as a pseudocoelom condition. Now talking about ये जो सीरोसीलोमेट कंडीशन है वो एस्केलमिन्थीज में होती है, एंड एस्केलमिन्थीज का मेंबर है एस्कैरिस. नाउ टॉकिंग अबाउट सीलोमेट कंडीशन. सीलोमेट कंडीशन उन एनिमल्स में होती है दैट इज पोजेसिंग सीलोम. ट्रू सीलोम जहाँ प्रेजेंट होती है उन्हें हम सीलोमेट बोलते हैं. यू कैन सी एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में ये कैविटी प्रेजेंट है जो मीजोडर्म से लाइंड है, एंड दैट इज नोन एज सीलोम. नाउ टॉकिंग अबाउट द पैटर्न्स ऑफ द सिस्टम. द डाइजेस्टिव सिस्टम is having two patterns, incomplete या complete. Now incomplete digestive system वो होता है जहाँ पे digestive system is having a single opening outside the body that is serving as both mouth and anus. वो animals जिनकी body में सिर्फ एक external opening है जो mouth और anus दोनों की तरह serve कर रही है, that is incomplete digestive system. Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes में सिर्फ एक external opening होती है इनकी body में, whereas complete digestive system वो होता है जहाँ पे digestive system की दो external opening होती है, mouth as well as anus. Now talking about circulatory system. Circulatory system is having two types, that is open and closed. Open circulatory system वो होता है when blood में cells and tissues they directly bathe into it. Blood is not flowing inside the blood vessel. वो open circulatory system होता है. Phylum Arthropoda and Mollusca they have open circulatory system, whereas closed circulatory system जब blood is flowing inside the blood vessels. हमारी body में blood is flowing inside the blood vessel, that is arteries, veins and capillaries. So Annelida, Echinodermata, Chorida in सब में that they're having closed circulatory system. The one which you should remember that open circulatory system is present in Arthropoda and Mollusca. Now talking about notochord. Notochord is basically the rod-like structure जो mesoderm layer की बनी होती है, and it is formed on the dorsal side, back side पे present होती है हमारे during embryonic development. जो एम्ब्रियो होता है फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एम्ब्रियो, तो उसमें ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, एंड अडल्ट फॉर्म में आफ्टर बर्थ दैट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट, एंड इट सेपरेट्स द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट. ये नर्वस टिश्यू को गट से सेपरेट करती है. जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है उन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं. पॉरीफेरा से लेके फाइलम इकाइनोडर्माटा तक सारे एनिमल्स को हम नॉन कॉर्डेट्स की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है. एंड एनिमल्स विच आर पोजेसिंग नोटोकॉर्ड we call them chordates because they have a notochord. Now metameric segmentation. You might have seen earthworm. उसका जो segmentation है, body is divided into segments. तो जो segments होते हैं वो आपको externally भी दिखाई देते हैं और वो internally भी present होते हैं. So ये जो internally और externally दोनों तरह से body का division होता है into segments और serial repetition होता है organs का, इसी को हम metameric segmentation बोलते हैं. In total जो segmentation है वो internal भी है और external भी है, and that is known as metameric segmentation. Basically you can observe it in earthworm, that is Annelida.
नाउ टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, दो तरह का डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जहाँ पे जो एनिमल एट बर्थ है दैट इज सिमिलर टू द अडल्ट फॉर्म, देर इज नो मच ट्रांजिशन फ्रॉम द इन्फेंसी टू मेच्योरिटी, इन्फेंसी से मेच्योरिटी तक ज़्यादा ट्रांजिशन नहीं होता, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, बॉडी में ग्रोथ होती है बट बॉडी का स्ट्रक्चर फिजियोलॉजी ऑलमोस्ट सेम रहती है, सो दैट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट, कोई लार्वल फॉर्म इन्वॉल्व नहीं होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में एनिमल का जो बर्थ फॉर्म है वो अडल्ट फॉर्म से बहुत डिफरेंट होता है। एम्ब्रियो फर्स्ट चेंजेस इनटू लार्वल फॉर्म और फिर लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट स्टेज अचीव करता है, सो दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। पोरीफेरा टू फाइलम इकाइनोडर्माटा, देयर इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, देयर इज अ लार्वल stage involved. Now talking about fertilization. Fertilization is also of two type, internal fertilization, external fertilization. जब sperm और ovum का fusion inside the female body होता है that is internal, and internal fertilization में copulation या mating involved होती है, and internal fertilization has a higher rate of survival क्योंकि जो offspring produce होता है उसको parental care provide होती है because it is developing inside the parent body. So there are high chances of survival because the offspring is implanted inside the female body and parental care provide होती है उसे पूरी। Whereas external fertilization में sperm and ovum का fusion external environment mostly water में होता है, यहाँ पर copulation या mating involve नहीं होती, यहाँ पर spawning involve होती है। Spawning is basically sperm and egg are released in the water, एंड इनका जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं इनका सर्वाइवल रेट कम होता है बिकॉज दे आर एट रिस्क ड्यू टू लैक ऑफ पेरेंटल केयर, यहाँ पे प्रॉपर पेरेंटल केयर इन्वॉल्व नहीं होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ दीज फाइलम्स along with the major characteristics, and let's talk about these different kingdoms of different phylums of animal kingdom in a comparative way, in a very concise way. Let's first have phylum Porifera. Phylum Porifera का common name is sponges, and sponges में जो special cell या structure present होते हैं वो choanocyte cell होते हैं, and their body is having pores, that is why we call them Porifera. Special characteristic feature जो इनका होता है, water canal system present होता है इनकी body में food intake के लिए, respiratory exchange के लिए, and also for waste removal. So you can identify phylum Porifera by water canal system. Then since इनकी body में cellular level of organization है तो कोई organ specifically present नहीं होगा, they excrete from their general body surface, they do not have an excretory organ. Habitat, sponges are all aquatic and they are mostly marine. Now you can observe examples of Porifera like Spongilla, that is freshwater sponge, and then is Euspongia, that is bath sponge. Now, Coelenterata. Phylum Coelenterata has a common name that is Cnidaria, and a special cell that is present is cnidocyte cell or cnidoblast cell, and they contain nematocysts. ये stinging capsule होते हैं जो paralyze करने के लिए use होते हैं. They are used for paralyzing the prey. So cnidoblast cell has nematocysts which is used for paralyzing the prey, and they are also used for anchorage, defense, and capture of prey. नाउ Coelenterata एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस शो करते हैं, फिनोमेना शो करते हैं, मेटाजेनेसिस. वी विल जस्ट टॉक अबाउट इट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स. एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनका भी कोई नहीं होता बिकॉज दे हैव अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ था, तो सो दे एक्सक्रीट फ्रॉम जनरल बॉडी सर्फेस, एंड दे आर ऑल्सो एक्वेटिक एंड मोस्टली मरीन. एग्जाम्पल्स आर हाइड्रा, then you might have seen jellyfish Aurelia. Then is sea anemone, that is Adamsia. And now coming to the point, metagenesis शो करते हैं. So Coelenterata के मेंबर दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, पॉलिप फॉर्म एंड द मेडिसा फॉर्म. जो पॉलिप फॉर्म होता है वो एसेक्सुअल फॉर्म होता है, वो स्टेशनरी होता है, दैट इज सिसाइल एंड इट इज सिलिंड्रिकल इन शेप. whereas जो मेडिसा फॉर्म होता है वो सेक्सुअल फॉर्म होता है एंड इट इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड इट इज मोबाइल और मूविंग. सो कुछ मेंबर्स Coelenterata के पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ मेडिसा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रा पॉलिप है, एंड एडम्सिया या सी एनेमोन मेडिसा फॉर्म है, ऑरेलिया मेडिसा फॉर्म है. वेराज ओबेलिया
ओबेलिया एक मेंबर है जो पॉलिप और मेडिसा दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मींस उसकी लाइफ साइकिल में पॉलिप स्टेज भी है, एसेक्सुअल स्टेज भी है और सेक्सुअल स्टेज मेडिसा भी है। सो अगर पॉलिप स्टेज है और उन्हें मेडिसा प्रोड्यूस करना है, पॉलिप बेसिकली एसेक्सुअल है तो वो मेडिसा को एसेक्सुअली ही प्रोड्यूस करेगा। सो दिस स्टेटमेंट सेज पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडिसा एसेक्सुअली, क्योंकि पॉलिप को अगर मेडिसा प्रोड्यूस करना है, वो एसेक्सुअल स्टेज है तो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा। एंड मेडिसा प्रोड्यूसेस पॉलिप सेक्सुअली, क्योंकि मेडिसा सेक्सुअल स्टेज है तो वो पॉलिप को सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा। सो बेसिकली दिस स्टेटमेंट सेज Obelia is a coelenterata जो मेटाजेनेसिस या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, where polyp produces medusa asexually and medusa produces polyp sexually. Now talking about Ctenophora. टीनोफोरा को हम कॉमन नेम जो देते हैं दैट इज सी वॉलनट और कोम जेलीज। एंड जो स्पेशल सेल या स्ट्रक्चर इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, दे हैव 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कोम प्लेट्स, और ये कोम प्लेट्स उनको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। एंड दे शो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस ये वो प्रॉपर्टी है एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वो लाइट एमिट कर सकता है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस. Now talking about excretory organ in Ctenophora, as discussed earlier कि Coelenterata और Ctenophora में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ है, तो इनका एक्सक्रीशन जनरल बॉडी सर्फेस से होता है एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, दे आर नॉट फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये आपको सी और ओशन में ही मिलेंगे, सो वी कॉल देम एक्सक्लूसिवली मरीन. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम Ctenophora is Ctenoplana and Pleurobranchia. Now coming to phylum Platyhelminthes. Platyhelminthes को हम फ्लैट वर्म्स बोलते हैं. फ्लैट वर्म्स मीन्स इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सली और वेंट्रली यानी कि फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड से फ्लैटेंड होती है. डॉर्सल साइड इज द बैक साइड, वेंट्रल साइड इज द फ्रंट साइड. सो दोनों साइड से फ्लैटेंड होती है, लीफ लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है इनका, इसलिए हम इन्हें फ्लैट वर्म्स बोलते हैं. एंड इनकी बॉडी पे जो स्पेशल सेल्स या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज हुक्स एंड सक्कर्स. इनकी बॉडी पे हुक्स और सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट टू इन पैरासिटिक फॉर्म्स. इनके जो इस फाइलम के जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं उनमें हुक्स और सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं. हुक्स एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट टू क्लिंग ऑन टू द होस्ट. होस्ट को क्लिंग करने के लिए, होस्ट को होल्ड ऑन करने के लिए इनकी बॉडी में हुक्स और सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ ये जो पैरासाइट्स होते हैं, जो प्लैटीहेल्मिंथीज होते हैं, बेसिकली एंडोपैरासाइट्स होते हैं इनसाइड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, इन एनिमल्स ऑल्सो. और इनकी बॉडी में कुछ अडेप्टेशंस होते हैं क्योंकि इन्हें रेडली अब्जॉर्ब, रेडली डाइजेस्टेड फूड मिलता है, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम well developed नहीं होता है. They do not have a well developed digestive system and they have a remarkable property of reproducing. Reproduce करने की इनकी property बहुत ज़्यादा होती है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा multiply हो सके. And they have hooks and suckers present on their body so that they can cling on to the host, ताकि host body से attach रह पाएँ. And we've already studied कि इनकी body का characteristic feature होता है कि इनकी body dorso-ventrally flattened होती है. So ये जितने characteristic features हम discuss कर रहे हैं, these are like identifiable कि if this statement is said then you have to identify कि phylum Platyhelminthes है क्योंकि वो dorso-ventrally flattened है. Now यहाँ पे Platyhelminthes से पहली बार organs बनना start हुए थे. So flame cells present हैं excretion के लिए. फ्लेम सेल्स आर हेल्पफुल इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करता है वो एक्सक्रीशन नहीं होता, वो ऑस्मोरेगुलेशन होता है. एंड ऑस्मोरेगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड्स. नाउ टॉकिंग अबाउट कि इनका हैबिटेट क्या होता है, ये सारे बेसिकली एंडोपैरासाइट्स होते हैं एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल्स, इसका एक मेंबर है प्लिनेरिया. प्लिनेरिया के पास रिमार्केबल पावर ऑफ रीजनरेशन होती है. इफ दैट एनिमल इज एक्सीडेंटली कट इनटू पीसेस then each piece will regenerate into a new organism. And then टीनिया टेपवर्म इसका मेंबर है. फैशियोला लिवरफ्लूग इसका मेंबर है. then moving ahead we have other phylum that is Aschelminthes. Aschelminthes का कॉमन नेम है राउंडवर्म. इनकी बॉडी में मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है. द बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इसीलिए हम इन्हें राउंडवर्म बोलते हैं. कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं फॉल्स सीलोम, सीलोसीलोमेट होते हैं ये. इनके पास बॉडी में फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होती है. मींस मेसोडर्म इज नॉट लाइंड, सीलोम इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म. मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस. एंड इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो एच शेप्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो रेनिथ सेल का बना होता है. हैबिटेट बेसिकली ये टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, फ्री लिविंग, पैरासिटिक हर तरह के हैबिटेट में प्रेजेंट होते
होते हैं, एंड एस्किलमिंथीज का टर्म ये एस्कैरिस से लिया गया है, सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज एस्कैरिस। एंड वुशरेरिया फाइलेरियल वर्म है जो ह्यूमन बींग्स में एलिफेंट फुट डिजीज या फाइलेरियासिस कॉज करता है। सो वुशरेरिया इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, ये फीमेल क्यूलेक्स के थ्रू स्प्रेड होता है, वुशरेरिया ह्यूमन बॉडी में जाके इन्फेक्ट करता है एंड इट्स कॉजेज एलिफेंट फुट डिजीज। नाउ टॉकिंग अबाउट फाइलम एनालिडा, एनालिडा सेगमेंटेड वर्म्स है, एंड एनालिडा की बॉडी में जो स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। दे शो अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि इनकी बॉडी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, मतलब बॉडी इज डिवाइडेड बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली एंड देयर इज सीरियल रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन्स, एंड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनालिडा इज नेफ्रीडिया, एंड हैबिटेट इज सेम, दे आर टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, फ्री लिविंग, पैरासिटिक, हर तरह का हैबिटेट है। जो एग्जाम्पल्स हैं एनालिडा के, अर्थवर्म, वी ऑल आर फेमिलियर, लीच, दैट ब्लड सकिंग एनिमल, सैंग्विविपोरस होता है लीच, एंड देन यू हैव नीरस, नीरस एक्वेटिक एनालिड है और इनमें पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए, इफ यू कैन सी इन द फिगर। देन आर्थ्रोपोडा, दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोपोडा में काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है, हार्ड कवरिंग होती है लाइक प्लास्टिक, एंड दैट इज काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इनकी बॉडी में एक बैलेंसिंग ऑर्गन स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि आर्थ्रोपोडा की बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, एंड देयर इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब इनकी बॉडी में ब्लड इज नॉट फ्लोइंग इनसाइड द ब्लड वेसल्स, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बेदिंग इनटू इट। एंड आर्थ्रोपोडा में बेसिकली सारे इंसेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, क्रस्टेशियंस भी आते हैं लाइक प्रॉन्स, क्रैब्स एक्सेट्रा, एंड दे हैव एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसे हम मैलफिजन ट्यूब्यूल बोलते हैं। सो आर्थ्रोपोडा हैव एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैलफिजन ट्यूब्यूल, हैबिटेट इनका भी सेम है। मस्कीटोज, क्यूलिक्स, एलिनोफिलीज, एडीज, सारे मस्कीटोज, एंड क्रस्टेशियंस लाइक क्रैब, प्रॉन्स, ऑल द इंसेक्ट्स दे आर इंक्लूडेड इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। देन मोलस्का, मोलस्का में कोई कॉमन नेम नहीं है, देयर इज अ मेंटल कैविटी प्रेजेंट, और एक स्पेशल ऑर्गन होता है रैडिला। रैडिला फाइल लाइक ऑर्गन होता है जो मैस्टिकेशन या चूइंग के लिए प्रेजेंट होता है, एंड इट इज हेल्पफुल इन चूइंग द फूड, एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, मस्कुलर, फुट एंड विसरल हम्प, एंड बॉडी के ऊपर एक कैलकेरियस शेल होता है। देयर इज लिटिल और नो सेगमेंटेशन इन मोलस्का। एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मोलस्का इज मेटानेफ्रीडिया, यहाँ पे गिल्स भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं मोलस्का में। गिल्स आर सर्विंग डुअल फंक्शन, दे आर हेल्पफुल इन रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन, एंड देयर हैबिटेट इज टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। Pila, the apple snail, that is a member of mollusca, and the pearl oyster, that is Pinctada vulgaris. The pearl oyster, the animal that produces natural pearl, is also a member of mollusca. Then you know octopus, the devilfish. Octopus is also a member of phylum Mollusca. Now talking about few more phylums, that is phylum Echinodermata. There is no common name. Special cell या structure जो इसमें present है, that is tube feet for locomotion, and they have a spiny body. Body पे spines present होती हैं. Characteristic feature है Echinodermata का that they have a water vascular system जो कि locomotion में help करता है. It also helps in capture of prey and respiration. Like ये दूसरा water driven system है. एक water driven system canal system porifera में present है और दूसरा water driven system water vascular system Echinodermata में present है. Please learn it specifically कि कौन से system का क्या function है. And then there is no proper excretory system in Echinodermata, and they are also exclusively marine. So Echinodermata and Ctenophora are the phylums which are exclusively marine, and examples Echinodermata के, that is starfish, asterias, and brittle star, Ophiuroidea. Now Hemichordata is not having any common name. There is a rudimentary structure present in their body which is similar to notochord. Notochord से similar इनकी body में एक rudimentary structure present है जिसे हम stomochord बोलते हैं, and this is how you can identify Hemichordata. And Hemichordata की body is divided into proboscis. You can see the proboscis, and then there is a collar, and then there is the trunk. So body is divided basically into proboscis, collar and trunk, and they have a proboscis gland for excretion. Means यहाँ पे proboscis में कोई gland present है जो excretion में help कर रहा है, and we call it proboscis gland. And they are worm-like marine animals. Example is Balanoglossus. The diagram is there in front of you. That is all.